بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جس پنڈال میں کھڑا ہوں اس میں موجود میرے بزرگ، میرے بھائی، سب کو سلام، اور خاص طور پہ اس دھرتی کے سپوت کمانڈر حنیف صاحب، جن کی عمر نذیر صاحب نے تمام زندگی کی جو کامیابیاں تھیں اس ریاست کے لیے، جو ان کا درد تھا وہ انہوں نے سنایا، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ان کی فیملی، آج تو ان کے بھائی مشتاق صاحب، مشتاق صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسلام گڑھ کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اچانک کے ہمارے اس پروگرام میں، اس گرمی میں آپ یہاں بیٹھے اور ہماری بات کو سن رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں اپنا مدعا بیان کر دوں۔ میں تمام باتیں جو اس سے پہلے میرے سابقہ مقررین نے کی ہیں، میں ان کو انڈوز کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو آن کرتا ہوں، جو باتیں وہ کی ہیں وہ باتیں میری سمجھی جائیں۔ میں تھوڑی سی ایک بات مختلف کروں گا۔ ہاں، یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں چند چیزیں ہماری جزوی مکمل ہوئی ہیں، باقی چیزیں ہماری پینڈنگ ہیں، اور انشاءاللہ ان کے مکمل ہونے تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سٹینڈ کرے گی اور کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ کیونکہ میں جو بات ڈیفرنٹ کرنے لگا ہوں وہ انسانیت کے ناطے پہ کروں گا، قانون ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے کروں گا، کیونکہ وہ خاص طور پہ اسلام گڑھ کے اوپر پیش آیا، لہذا مجھے اس پہ بات کرنی ضروری ہے۔ یہ تحریک پرامن تحریک تھی جو 8-9 ماہ سے پرامن چل رہی تھی۔ پوری ریاست کے اندر دھرنے تھے، احتجاج ہوئے، لاٹھی چارج ہوئے، FIR ہوئی، لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا۔ یہ بات درست ہے نا جناب؟ اب ہوا کیا اس کے بعد کہ جب یہ تحریک اپنے دوسرے فیز میں جاتی ہے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر دھرنے اور احتجاج سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو 8 مئی کو یا 8 مئی سے پہلے میں ذکر کروں گا اپنے وزیر داخلہ جو ہمارے وقار نور صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، وزیر اعظم انوار الحق صاحب، میں آپ تینوں کو مخاطب کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ ریاست ہماری ہے، اس کا نظام ہمارا ہے۔ یہ لولا لنگڑا سیٹ اپ جو بے شک کہہ لیں ہم، یہ لیکن ہے یہ ہمارا، اور ہم نے اسی کے اندر رہتے ہوئے اسی نظام کو ٹھیک کرنا، اور اپنی ریاست کو کسی صورت کسی اور شکل میں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تو بات ہے نا۔ اب جب ہماری ریاست تھی، ریاست ہے، ریاست کے ادارے ہیں، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا وہ انتظامیہ ہیں، وہ ہمارے ادارے ہیں، وہ اچھے ہیں برے ہیں، وہ ہمارے ادارے ہیں۔ یہ بات ہم آن کرتے اور ہمیشہ آن کرتے رہیں گے۔ ہماری یہ وہی پولیس تھی جس نے آج تک آپ کے بڑے بڑے معاملات، چاہے وہ احتجاج ہوئے، وہ آپ کے الیکشن ہوئے، یا کوالہ یا منگلہ سے لے کے نیلم جیلم پروجیکٹ کی تکمیل تک ہوئے، جہاں پہ تمام فارنرز آئے، کسی کو جان کا خطرہ نہیں ہوا۔ یہ پرامن خطہ تھا، پرامن خطہ ہے، اور ہم اس کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں اور رکھیں گے۔ یہ وہی پولیس تھی جس نے نیلم جیلم پروجیکٹ مکمل کرایا، کسی فارنر کو جان کا خطرہ نہیں ہوا، اور وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ ایک الگ پہلو ہے، جب اس پہ کہیں موقع ملا اس پروجیکٹ میں جو کرپشن ہوئی اس پہ بھی ذکر کروں گا۔ اب جب وہی پولیس تھی تو میں نے جن 3 صاحبان کے نام لیے، میں اینڈ انہی پہ کروں گا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے FC پاکستان سے رینجر اور FC کا مطالبہ کر دیا، اور وہ وہاں پہ آپ کو اجازت بھی مل گئی۔ جناب، کیا ہم آزاد کشمیر میں حالات خراب ہو رہے ہیں؟ ایکشن کمیٹی احتجاج کر رہی ہے 11 مئی کو، اور فارنرز کی ہمارے جو پروجیکٹ ہیں ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ تمام جھوٹ فراڈ پہ مبنی وہ لیٹر تھا جو انہوں نے وفاق میں لکھا، اور وہاں سے پولیس کو بلایا گیا، رینجرز کو بلایا گیا، FC کو بلانے کی بات کی گئی۔ پھر دوسری غلطی کہ یہ بتائیں آج تک کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ہماری اس پولیس نے گنیں اٹھائی ہوں اور وہ ریہرسل کر رہے ہیں، اور وہ ریہرسل جو ہے وہ میڈیا میں دکھائی گئی لوگوں کو ڈرانے کے لیے؟ ہماری پولیس والوں کو انہوں نے ریہرسل کروائی کہ کس طرح مارنا ہے، کس طرح شیلنگ کرنی ہے۔ اس وقت تک ریاست کا کوئی نظام خراب نہیں ہوا تھا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جس وقت لیٹر لکھا گیا، جس وقت پولیس کی ریہرسل کرائی گئی، اس ریاست میں گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ 8 مئی کو ڈوڈیال کے مقام پہ
पुरअमन एहतजाज हो रहा था, लोग वहां इकट्ठे थे, धरने में बैठे हुए थे। एक मेरे भाई असिस्टेंट कमिश्नर साहब वहां पे आते हैं, वीडियोस मौजूद हैं, मैं जो बात करूंगा वो साबित करूंगा कि पुरअमन एक एहतजाज हो रहा है। वो क्राउड में जाते हैं और जाके थप्पड़ मारते हैं क्राउड में एक मेरे भाई को। आप मुझे बात बताएं, कानून में किस जगह लिखा है कि सरकारी मुलाजिम जो है वो किसी आम शख्स को थप्पड़ मारे या उस पर तशद्दुद करे? नहीं कर सकता। लेकिन जब आप फिर किसी को ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, फिर आपको उस एक्शन का रिएक्शन हमारी डुडियाल के शेरों ने वहां पे दिया और आपको जूते पड़े और आपकी तलवारें जो चौकों में लटकाई गई। अब उसके बाद मैं 11 मई के ऊपर आता हूं। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, वो इस रियासत के वो भी बाशिंदा हैं। हम दो कुव्वतें आपस में एक बात कर रही थी अपनी। एक कुव्वत थी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की, आप लोगों की, जो अवामी हकूक की बात कर रहे थे। उन्होंने कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग, कोई एटम बम या किसी मुल्क से लड़ाई लड़ने की बात नहीं की थी। वो इस रियासत के अंदर रहते हुए अपने वसाइल पे दस्तरस मांग रहे थे। इस रियासत के अंदर जो 53 का इतना बड़ा टोला है, उससे जान छुड़ाने की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये रियासत छोटी सी है, इस रियासत पे इतना बड़ा बोझ मत डालें, ये रियासत नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जब इस रियासत के अंदर हम गरीब की बात करते हैं, सस्ते आटे की बात करते हैं, सस्ती बिजली की बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो हमारा मुतालबा था कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर दोहरा म्यार हम नहीं रहने देंगे कि एक तरफ आपने इतनी बड़ी फौज जो है मिनिस्टरों की, फ्लैग होल्डर्स की बना के रखी है, और इसलिए कि सिर्फ एक शख्स को उसका इक़्तिदार का तूल चाहिए, और दूसरी तरफ जब गरीब खुदकशियां करने पे मजबूर हो गए, गरीब के घर में एक टाइम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, हमने जब मुतालबा किया आटा महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, इसको सस्ता करो, तो हमारी बात को नहीं माना गया और हम एहतजाज पे आए। यही बात थी ना। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की तो कोई जंग नहीं थी, या कोई और राह की एजेंडी तो नहीं की हमने तो गरीब की एजेंडी की है, गरीब के हकूक की एजेंडी की है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे, उससे पीछे कभी नहीं हटेंगे। अब होता क्या है, 11 मई को जब ये एहतजाज तूल पकड़ गया 8 मई की वजह से, इसकी सारी जिम्मेदारी इस रियासत पे जाती है कि ये एहतजाज जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो पुरअमन एहतजाज था, अगर वो 1 साल 8 से 9 माह पुरअमन रह सकता था, तो फिर ये बताया जाए 8 मई को जानबूझ के लोगों को इश्तिहाल क्यों दिलाया, किसने दिलाया और उसका मकसद क्या था। 11 मई को यहाँ पे एक वाकया होता है, तशद्दुद हुआ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त, और हम कहेंगे और इसका पहरा देंगे कि हम रियासत की आवाम के हक की बात कर रहे हैं और आखिरी वक्त तक करते रहेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, दूसरी साइड पे जाते हैं, रियासत का ये इदारा है हमारा पुलिस का जो एक मुलाजिम है वो हलफ लेके भर्ती होता है कि उसने इस रियासत के आइन कानून ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए अपने सीनियर्स के अहकामात को मानना है। उन्होंने अपनी नौकरी की, मैं किसी पुलिस वाले को बुरा भला नहीं कहूँगा, इसलिए कि हर एक्शन का रिएक्शन है। जब काम उन्होंने 8 मई को खोल दिया, फिर अच्छा बुरा सुखी नाल सिनी नहीं सड़ गई, वो सब बराबर हो गया। अब यहाँ पे जो वाकया होता है, मैं 4 शहीदों का जिक्र करता हूँ। 3 मेरे, ये यहाँ पे 3 की तस्वीरें लगी हुई हैं। चौथा मेरा वो भाई अदनान कुरैशी है जो अपनी ड्यूटी देते हुए किसी की गोली से शहीद हुआ, और मैं दावे से ये बात करता हूँ एक्शन कमेटी का कोई शख्स इसके अंदर शामिल नहीं है। अब ये भी पूरी एक साजिश की गई और एक कीमती जान और जाया होगी। वो मेरा भाई अदनान कुरैशी है जो अपनी ड्यूटी दे रहा था, हमारा उसका कोई जाती झगड़ा नहीं है, वो भी किसी का बेटा है, उसकी भी कोई घर वाली है, उसका भी कोई बच्चा या बच्ची है, हम उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसकी एहतियात कर सकते हैं। लेकिन साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि जिन लोगों की वजह से इस रियासत के हालात खराब हुए और हमारी 4 कीमती जानें जाया हो गई, उनका जवाब कौन देगा? इनको जवाब देना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, ये कभी नहीं बचेंगे। इन्होंने हमेशा लोगों की जानों पे सियासत की है और अयाशियां की हैं, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है, अब लोग बाशऊर हो चुके हैं। ये वो शऊर है जो ये सामने बैठे हुए, ये वो शऊर है, किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, आप अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं।
जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात सुनने के लिए। यहाँ पे उसी दिन हमारे ओवरसीज भाई जो पूरे आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस जो हमारा मीरपुर डिवीजन है, इसमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज हमारे मौजूद है और वो यहाँ पे आते जाते हैं। उस दिन हमारे दो भाई राजा साजिद साहब और साकिब गुजर साहब जो वो भी मौजूद थे। इन दोनों को तशद्दुद किया गया। साकिब साहब बाहर चले गए हैं और साजिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इन सब को जो है मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पे उस दौरान जितने हमारे लोग ज़ख्मी हुए उन पर तशद्दुद हुआ और उसके बाद उनको झूठी FIR में ज़ेरे बार किया गया, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। एक बात हुकूमत को बताना चाहता हूँ, मैं जब से मीरपुर डिवीजन में आया हूँ मैंने ये बात की है और अभी ये बात जो पुलिस का मिसाल दे के की कि हमारा किसी पुलिस से ज़ाती झगड़ा नहीं है, हमारा किसी इंतजामी ऑफिसर से ज़ाती झगड़ा नहीं है, हम एक असूल की बुनियाद पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर आप दोबारा रियासत को मैं मुखातब करके कहता हूँ, रियासती अदारों को, इन हुक्मरानों को कि हमारी तहरीक पुरअमन थी, पुरअमन है और पुरअमन रहेगी। अगर आपको शौक है एडवेंचर करने का, आप दोबारा करना चाहते हैं, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आप लगाएं। हम भी आपको बताएंगे कि अवामी दौर क्या होता है, अवामी लोग किस तरह अवाम का जो है जो जब समुद्र बाहर निकलता है उसकी मिसालें आपने बांग्लादेश और पूरी दुनिया में इससे पहले मिसालें मौजूद हैं कि जब अवाम बाहर निकलती है तो फिर ये अदारे, ये 2 नंबर हुक्मरान जो ये फिर कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा हमने बार बार मुज़ाकरात किए और वो वक्त भी था 13 मई को जब 3 लाशें मुजफ्फराबाद पड़ी हुई थी, हमारे 3 भाई शहीद हो चुके थे। हम इस रियासत में बहुत कुछ कर सकते थे, ये रियासत खत्म हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूंगा अल्लाह इस रियासत को कायम रखे, ये हमारी शनाख्त और हम इसको कायम रखेंगे, किसी भी सूरत इस पे आंच नहीं आने देंगे। और वही वो दिन था, वही वो रात थी। अगर हमें इस रियासत की फिक्र ना होती, अपने तशख्खुस की फिक्र ना होती, मैं बार बार कहूंगा कि अपने इस झंडे की फिक्र ना होती, अपनी कश्मीरियत की फिक्र ना होती, तो हम उस रात इनको बताते कि इसका 3 लाशों का जवाब किस तरह दिया जाता है। लेकिन हमने ये काम नहीं किया, हमने मजीद लाशें नहीं गिराई, हमने इस रियासत को मजीद परेशानी में नहीं डाला। लेकिन हमारे इस अमल को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमने ये काम इसलिए किया कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और उसके जितने लोग जिन पे तशद्दुद किया गया, झूठी FIR काटी गई, उन्होंने इस मसले को जाती मसला नहीं बनाया, अना का मसला नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर रियासत की आवाम का और ओवरसीज भाइयों का एक बोझ है। वो एक मैंडेट है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को दिया है कि ये मैंडेट आपके पास है, आप बाइख्तियार हैं कि आप हमारा फैसला सोच समझ के जो बेहतर समझते वो करें। और उस रात जो बेहतर हमने फैसला समझा वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 नोटिफिकेशन हासिल किए। गो कि अभी उनके अंदर काफी सारी चीजें बाकी हैं जिस पे थोड़ा टाइम लगेगा। ये 76 सालों का गंध है, 76 सालों का गंध 1-2 सालों में नहीं खत्म होगा, हमें जुड़े रहना पड़ेगा।